Hello students, how are you? I hope you are all fine. Today I am going to explain you the poem Roadside Stand, poem number 5 from Flamingo 12th class. The poet is Robert Frost. So please go through line by line, open your book as I always say, and as usually again my request is to subscribe, like and share my channel. So please try to understand a roadside stand poem number 5 from Flamingo of 12th class. Poet is Robert Frost. Introduction. A roadside stand summary deals with the lives of poor, deprived people. Furthermore, the poet contrasts the struggling lives of the countryside people with insensitive life of the city dwellers. Now, summary in English. A roadside stand. What is roadside stand? A roadside stand portrays the poor country people whose earnest desire is to rise above their wretchedness. Wretchedness. They attempt to do this by putting by roadside stand. In other words, I can say a roadside stand portrays poor country people whose earnest desire is to rise above their wretchedness. They attempt to do this by putting up roadside stands and trying to sell whatever they can to improve their lives. But the city people just speed by in their cars and do not even notice them, and when they do, it is with irritation, as they are having spoiled the natural landscape with their badly written sign. The position of city dwellers pros very aptly portrays the country's people's anger at the selfishness of city dwellers for all they wanting to attain the standards that they have seen promised to them in movies, but which they feel is being denied to them by the present government. Benevolent people, they do not want charity, and the poet makes it very clear that the donors are actually ruining their lives by calling these so called benevolent people greedy and beasts of prey. They move them to countryside to live near theaters and shops and encourage them to live ideal lives, which will take away their peace and wits. The poet feels pain on seeing the country people's intense longing for a better life and their sadness at the non-fulfillment of their dreams when not even one car stops to inquire about the goods they are selling. The city dwellers are projected of being involved in the one lives with no thoughts for anyone else. Heartlessness of the city dwellers. The poem shows the heartlessness of the city dwellers through the poet's intense desire to put an end in the country people so that there would be a relief from their complaints about the lack of upliftment of their lives. The poem ends with the poet's remorse at their feelings when he realizes how he would feel if someone were to try to end his pain in the same way. Conclusion is that a roadside stand summary shows us the great contrast between the comfortable life of city dwellers and the harshness faced by the impoverished rural people. So this was the summary of roadside stand from Flamingo 12th class lesson. Yeah, lesson number 5 from 12th class Flamingo, a roadside stand, written by Robert Frost. नाउ आई एम गोइंग टू नरेट इन हिंदी. विद्यार्थियों, आपका हेम दिशा इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है. मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं एक नई कविता पढ़ने के लिए जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड. 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभकारी है. अ रोड साइड स्टैंड पार्ट नंबर 5, पोएम नंबर 5. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं.
इसका परिचय मैं पहले दे दूं। यह कविता क्या है? यह सड़क के किनारे खड़े रहने वाले लोगों को, गरीब वंचित लोगों के जीवन से संबंधित है। इसके अलावा कवि शहरवासियों के असंवेदनशील जीवन के साथ देश के लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन के विपरीत है। ए रोड साइड स्टैंड एक्चुअल में है क्या? ये गरीब देश के लोगों को चित्रित करता है, जिनकी सबसे बड़ी इच्छा उनकी मनहूसता से ऊपर उठना है। वे सड़क के किनारे खड़े होकर ऐसा करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उसे बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन शहर के लोग अपनी कारों में बस गति करते हैं और उन्हें नोटिस भी नहीं करते हैं। और जब वे ऐसा करते हैं तो उनके बुरे स्वभाव के साथ प्राकृतिक परिदृश्य को खराब कर देता है। शहर के रहने वालों की स्थिति क्या है? फ्रॉस्ट बहुत उपयुक्त रूप से देश के लोगों के गुस्से को शहरवासियों के स्वार्थ पर चित्रित करता है और वह जो वे चाहते हैं कि वे उसके मानक को, उस परिणाम को, परिमिति को प्राप्त करें जो उन्होंने फिल्मों में उन्होंने वादा किया है, लेकिन उन्हें जो लगता है कि वर्तमान सरकार द्वारा उन्हें अस्वीकार किया जा रहा है। हाँ, कुछ परोपकारी लोग भी होते हैं, वे दान नहीं चाहते हैं और कवि यह स्पष्ट करता है कि दानदाता वास्तव में इन तथाकथित परोपकारी लोगों की लालची और जानवरों का शिकार बताकर उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वे उन्हें सिनेमाघरों और दुकानों के पास रहने के लिए ग्रामीण इलाकों में रह जाते हैं, उन्हें बेकार जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उनकी शांति और बुद्धिमत्ता को छीनने में सहायक होता है। कवि का दर्द ये सब देखते हुए क्या है, बड़ा मार्मिक है। कवि को देश के लोगों को बेहतर जीवन की तीव्र लालसा और अपने सपनों को पूरा न होने पर बहुत दुख होता है। जब भी एक कार उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के बारे में पूछताछ करने के लिए नहीं रुकती है ना, तो शहर के निवासियों को किसी और के लिए कोई विचार नहीं होने के साथ खुद के जीवन में शामिल होने का अनुमान है। शहर के लोगों की दिल से दुविधा क्या है? कविता शहरवासियों की हृदयहीनता को देश की जनता को खत्म करने की कवि की पागल इच्छा के माध्यम से दिखाती है, ताकि उसके जीवन की उत्थान की कमी के बारे में उसकी शिकायतों से राहत मिल सके। कविता इन भावनाओं पर कवि के पश्चाताप के साथ समाप्त होती है, जब उसे पता चलता है कि अगर कोई उसी तरह से अपने दर्द को खत्म करने की कोशिश करता है तो उसे कैसा लगेगा। इसका निष्कर्ष कविता का मैं बताना चाहूँगा। रोड साइड स्टैंड का सारांश हमें शहरवासियों के आरामदायक जीवन और गरीब ग्रामीण लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठोरता के बीच महान विपरीत दिखाता है। तो विद्यार्थियों, ये यहाँ पे सारांश, यहाँ पे समरी समाप्त होती है। एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आप बार सब्सक्राइब कर देंगे तो बराबर आपको नोटिफिकेशंस मिलते चलेंगे। ये कविता, अभी तक इतनी ही कविताएं कोर्स में लिखी थी आपकी इस साल की, तो मैं समझा चुका हूँ। इसके बाद मैंने फ्लेमिंगो के पार्ट के अलावा अब मैं विस्तास के प्लॉट आपको समझाना चालू करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे ये विदा तो चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स भी बता देता हूँ। आप पाठ को बिल्कुल एक एक लाइन से अच्छी तरह से समझिएगा और अच्छे क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस के अच्छे आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। आउट विथ का मतलब होता है बढ़ाया हुआ, एक्सटेंडेड। ट्रैफिक तो आप समझते ही हैं, गाड़ियाँ जो सड़क से गुजर रही है, व्हीकल्स, ये अपने आप एक पर्सनिफिकेशन है। रोड साइड स्टैंड, ये भी एक पर्सनिफिकेशन है। शेड बोलते हैं इसको, छोटा सा शेड। एंग्रीली, नाराज़गी से के लिए इसमें शब्द वापरा गया है क्रॉसली। एक भावनात्मक अपील, एन इमोशनल अपील, इसके लिए एक शब्द यहाँ पे वापरा गया है जिसको बोलते हैं प्लीड, PLEAD। विदरिंग मतलब मुरझाया हुआ, फेड, WITHERING, विदरिंग। STRO कोई स्ट्रोक मतलब होता है किसी चीज़ पर अपने हाथ को धीरे धीरे घुमाना। मूविंग योर हैंड स्लोली एंड जेंटली ओवर समथिंग और समवन। आइए अब इसके बाद मैं आपके लिए पोएटिक डिवाइसेस का कुछ वर्णन करना चाहूँगा। छोटे से अपने कुछ पोएटिक डिवाइसेस है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो पाठ का नाम है ना,
रोड साइड स्टेन यह अपने आप में एक पोएटिक डिवाइस है। इसको अपन पर्सनिफिकेशन मिलते हैं, क्योंकि इसकी पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है नॉन ह्यूमन थिंग्स से कंपैरिजन करना। नॉन ह्यूमन थिंग्स जैसे रोड साइड एक्सीडेंट, रोड साइड स्टेन। अब रोड साइड स्टेन का मतलब क्या है कि रोड साइड पे खड़े रहने वाले बेचने वाले लोग, तो वो लोग होते हैं, उनका स्टेन से पर्सन वाइज बताया जा रहा है, तो इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद कविता की पहली लाइन फ्लेमिंगो में लिखी हुई है और रोड साइड में पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ लिटिल न्यू स्टेन। इसमें एक तो लिटिल लिटिल दो बार आया हुआ है, इसका मतलब ये रिपीटेशन है। और ओल्ड और न्यू दोनों अपोजिट चीज़ें एक साथ आई हुए, इसको अपन एंथेसिस बोलते हैं पोएटिक डिवाइस में। एक तो पोएटिक डिवाइस इसमें हो गई रोड साइड स्टैंड जो अपने आप में पर्सनिफिकेशन है। दूसरी पोएटिक डिवाइस लिटिल लिटिल दो बार आया है, रिपीटेशन है। ओल्ड हाउस एंड न्यू शेड, इसमें ओल्ड और न्यू दोनों अपोजिट चीज़ें आई हुई हैं। इनको इस पोएटिक डिवाइस को एंथेसिस बोलते हैं, EANTHESIS। इसके आगे देखिए लाइन पे लाइन पढ़ते चले जाएंगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन नहीं 1 2 3 4 5 6वीं 6वीं और 7वीं लाइन में द आपको लिखा हुआ मिलेगा, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ द पॉलिश ट्रैफिक। हालांकि ये बात ठीक है, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ अलग सेंटेंस है, द पॉलिश ट्रैफिक अलग सेंटेंस है, लेकिन फिर भी द और द साथ में लिखा है, इसको अपन एनाफोरा कहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से मेटाफोर भी है और पर्सनिफिकेशन भी है, इसको कहते हैं। और इसके बाद आइएगा ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज एंड वुडन स्क्वाड। इसके बाद और दोनों बार लिखा हुआ है साथ में, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो अगेन एनाफोर। एंड इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप कविताएं पढ़ते चले जाएंगे तो उसमें आपको आखिर में सेकंड लास्ट स्टेंजा में आपको आखिरी 3 लाइन के अंदर पहले सेकंड लास्ट स्टेंजा की आखिरी लाइन जो है उसके पहली 2 लाइन में एन अनदर लिखा मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनाफोरा पोएटिक डिवाइस में। फ्लावर फ्रॉम फैंट, ये तीनों लिखे हुए मिलेंगे एक ही लाइन में, इसको अपन एलिट्रेशन कहेंगे क्योंकि एफ 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 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। सिटी मनी का मतलब है यहाँ पे हाइपरबोल, उसके बारे में कुछ उच्च स्तरीय बताया जा रहा है, इसलिए इस पोएटिक डिवाइस को सिटी मनी को अपन कहेंगे हाइपरबोल। उसके बाद लाइटोल का मतलब होता है निगेशन। ये पोएटिक डिवाइस निगेशन जिसमें निगेटिविटी आती है और स्पेशली टेंटोलॉजी इसमें भी पेश की गई है, वो है मनी या कैश। और हाँ, मैं इसके बारे में बता रहा था निगेशंस के बारे में, जिससे नॉट निगेटिव आता है, इसको अपन निगेशन बोलते हैं, लाइटोल भी बोलते हैं। और टेंटोलॉजी इसमें मनी या कैश से संबंधित ये बातें हैं, इस पोएटिक डिवाइस को अपन टेंटोलॉजी भी बोलते हैं। तो आइए इसके साथ हम कविता का समापन करते हैं और आप लोगों के लिए शुभेच्छा रखते हुए कि आप एक एक लाइन को अच्छी तरह से ग्रहित करते हुए, अच्छी तरह से पढ़ते हुए, अच्छी तरह से सोचते समझते हुए अपने जीवन की ओर उत्थान करते जाइएगा और अपने जीवन में उन्नति लाइएगा। ये सब पाठ और कविताएं मैं आपको बताता हूँ, ये जहाँ से जितना बढ़िया से बढ़िया मेरे से हो सकता है उतने सरलीकृत करते हुए आपको बता सकता हूँ, उतना बताना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और इसके विपरीत और कोई चीज़ नहीं है जो आपको उत्थान से रोक सके। तो आप अव्वल आइए, परीक्षा में विजयी रहिएगा बहुत अच्छे नंबरों के साथ। इन्हीं दुआओं के साथ मैं यहाँ पे हेमंत में आपसे विदा लेता हूँ, आपकी अच्छी उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। और नमस्कार, नमस्ते, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी हियर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।